मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सही बात है, आजकल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी का जंग लड़ रहा है। इसके कारण हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में लॉकडाउन का आह्वान किया है और आप लोगों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए सीबीएसई करिकुलम के अनुसार हम लोग आपको घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था दे रहे हैं। देन टुडे वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट लेसन ऑफ फर्स्ट फ्लाइट और लेटर टू गॉड। दिस इज अ स्टोरी. दिस हैज बीन composed by G.L. Fuentes. Before going through the story, I want to tell you the main character of this story. The main character of this story is Lanko, who is a firm believer in God. And you know that the person who believes in God always gets success in the world. According to the lesson, the poet says that faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lanko is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lanko's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read this story. Now I am going to teach you the lesson. The house, the only in the entire valley, sat on the crest of a low hill. पूरी घाटी में एक छोटी पहाड़ी के ऊपर एक लौता घर लैंको का था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और यहाँ से उसका हरा भरा फसल चारों तरफ देखा जा सकता था. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. मात्र लैंको को एक ही चीज की आशा थी, वह था अच्छी बारिश. और अच्छी बारिश कम से कम अगर अच्छी बारिश ना हो तो कम से कम रिमझिम बारिश की आवश्यकता थी उसके अच्छे फसल होने के लिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरा सुबह लैंको कुछ नहीं किया बल्कि वह टुकुर टुकुर आसमान की तरफ एक आशान्वित आंखों से देख रहा था कि कहीं बादल का एक टुकड़ी आसमान में आए और उसके खेत को अपने जल से सींच दे, जिससे so that he could get good harvest. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." इस पर लैंको बोला, लगता है कि हमें अब थोड़ा बारिश मिलने वाली है. इस पर जो महिला सपर बना रही थी उसने जवाब दिया, ईश्वर की मर्जी. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. जो बड़ा लड़का था वह घर के बगल में खेल रहा था, जबकि छोटा दूसरा लड़का घर के पास
बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था, जबकि छोटा लड़का घर के बगल में खेल रहा था। जिस समय महिला सभी लोगों को डिनर के लिए बुलाई थी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड, भोजन का समय था। ठीक उसी समय जैसा कि लैंको ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश के बड़े बड़े बौछारे गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूरब की दिशा से बादल की एक विशाल टुकड़ी आसमान में चढ़ता हुआ नजर आया। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा शीतल और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही टर्न्ड ही exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are now coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." In this paragraph, the author has described the hope of Länko. Länko hopes for a good rain, and when he was having his meal, the rain started. The rain began to fall in his field, and falling of rain gives Länko a great pleasure. Happily, he compares the big raindrops with 10-cent pieces, and little ones are 5s. This line shows Länko's hope, Länko's joy. Now, let's move to the next paragraph. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. संतुष्ट होकर इस वर्षा से लैंको काफी संतुष्ट हो गया। उसका पूरा परिवार काफी खुश था, और अचानक इस बौछारे के साथ तेज हवा भी बहने लगी, और तेज हवा तुरंत ही हेल स्टोन में चेंज हो गया। माय डियर स्टूडेंट, हेल स्टोन्स का मतलब होता है वर्षा के साथ पत्थर का गिरना, और उसके साथ तेज हवा भी हो। तेज हवा, वर्षा का पानी और उसके साथ पत्थर जब एक साथ गिरने लगते हैं तो इसे हम लोग हेल स्टोन्स बोलते हैं, और यह हमेशा ही विनाशकारी होता है। इट इज ऑलवेज डिवास्टेटिंग, इट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर एनी पर्सन। एंड दिस टाइम लैंको compares raindrops or hailstones to new silver coins, and boys compares these hailstones with frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. उस आदमी ने कहा, सचमुच में अब बहुत बुरा होने जा रहा है।
I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूं कि यह समय जल्द ही बीत जाए. It did not pass quickly. लेकिन आदमी के चाहने से क्या होता है? यह विनाशकारी हेलस्टोन्स तुरंत नहीं थमा. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और शीघ्र ही पूरे सारे जगहों को इसने ढक दिया, जैसे बगीचा, हिलसाइड, कॉर्नफील्ड और घाटी. पूरे घाटी में ये बर्फ फैल गए. द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और अब पूरा का पूरा खेत बर्फ से ढक गया था. और ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने पूरे खेत में नमक फैला दिया हो, नमक से पूरे खेत को ढक दिया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं टिका. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लैंकोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया. सारे फूल पौधे से गिर गए. लैंको का आत्मा दुख से भर गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. जब यह तूफान समाप्त हुआ तो लैंको अपने खेत के मध्य में खड़ा होकर अपने बेटों से एक ही वाक्य कह पाया. इससे ज्यादा तो कहीं फसल बर्बाद करने वाले टिड्डे छोड़ जाते. बट दिस डिवास्टेटिंग हेलस्टोन्स लेफ्ट नथिंग फॉर लैंको, लेफ्ट नथिंग फॉर अ पुअर फार्मर एंड हिज फैमिली. नाउ Lanco's crops have destroyed. What would he do for his surviving in the world? Without money, a man can survive in the world, but without food, no one can survive. And this is the pity for Lanco. The hill has left nothing. This year we will have no corn. Lanco ने कहा, इस झंझावात ने कुछ भी नहीं छोड़ा है और ऐसा लगता है इस वर्ष हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा. That night was a sorrowful one, all our work for nothing. वह रात दुख भरी रात थी. लैंको का पूरा मेहनत बेकार हो गया. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. अब चूंकि घाटी में लैंको अकेले था, दूसरा वहां उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था. लैंको को ऐसा लगने लगा कि सारा वर्ष उसको भूखा रहना पड़ेगा. Because in the beginning of the story, I have explained you that only one house of Länco was in that valley. There was no other house in that valley. That's why no other person can help Länco's, because there was none except Länco. That's why Länco can ask for help from one person, that's God. Except God, no one can help Länco this time in this valley. Now let's ahead and see what happens. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss.
उदास नहीं होना है। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि उसके जीवन का पूरा का सबसे बड़ा हानि यही था। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर भी उसके दिल में एक विश्वास है, और लैंको के दिल का विश्वास ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात लैंको अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। उसकी वह उम्मीद ईश्वर से सहायता मांगने की है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। जैसा कि लैंको को पहले से ही ज्ञात है कि ईश्वर की आंखें इस धरा की हर चीज, हर एक वस्तु को देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंको मेहनती व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन उसको लिखना पढ़ना भी आता था। इट मीन्स दैट ही वॉज एन एजुकेटेड फार्मर। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले सुबह उसने एक पत्र लिखा और खुद ही जाकर उसको मेल किया। It was nothing less than a letter to God. यह ईश्वर के लिए एक पत्र था जो लैंको के द्वारा लिखा गया था। He wrote, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come. उसने लिखा, यदि इस वर्ष आप मेरी और मेरे पूरे परिवार की सहायता नहीं करेंगे तो हमें हमारे परिवार के साथ सालों भर भूखा रहना पड़ेगा। मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है ताकि मैं अपना अगला फसल लगा सकूं। Because the hailstorm, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed his letter to God. पोस्ट ऑफिस का एक आदमी जब इस पत्र को पढ़ा, उसे काफ़ी हंसी आई और हंसते हुए वह पत्र लेकर पोस्ट मास्टर को दिखाने के लिए गया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पोस्टमैन के कैरियर में अब तक उसे इस प्रकार का एड्रेस नहीं मिला था कि कोई भी व्यक्ति भगवान के पास पत्र भेजे। द पोस्ट मास्टर और फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर देखने में मोटा था, मिलनसार व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और जैसे ही उसे भी पता चला, जैसे वह भी देखा कि इस पत्र पे ईश्वर का पता लिखा हुआ है, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on the desk commented. लेकिन तुरंत वह सीरियस हो जाता है और पत्र को टेबल पर ठोकते हुए उसने कुछ कमेंट दिया। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God. उसने एक्सक्लेम किया, कितना बड़ा विश्वास! काश मेरे पास भी उस आदमी का फेथ होता जो ईश्वर के पास इस प्रकार का पत्र लिखा है। और उसके बाद वह गॉड के कॉरेस्पॉन्डेंस होकर सोचना शुरू करता है।
So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. पोस्टमास्टर लैंको के इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। अचानक उसने अपना एक विचार प्रस्तुत किया, आंसर द लेटर। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन उसको लगा कि पत्र के बदला पत्र लिखकर उत्तर देना उचित नहीं है, इसके लिए उसे कुछ दूसरे वस्तु की आवश्यकता है। सिर्फ इंक और पेपर से पत्र नहीं लिखा जा सकता था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तभी उसने एक निर्णय लिया और अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाकर उनसे कुछ हेल्प मांगा, पैसे का हेल्प मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज were obliged to give something for an act of charity। और खुद भी अपना योगदान दिया और जो भी उसके एम्प्लॉयज थे सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर इकट्ठा किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। पोस्टमास्टर के लिए भी 100 पैसों जमा करना एक चैलेंज था, इट मीन असंभव था। फिर भी उसने आधा से अधिक पैसा जमा किया ताकि वह किसान को थोड़ा हेल्प कर सके। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंको एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने लिफाफे में पैसा डाल दिया, एक पद डाल दिया और पत्र के ऊपर एक ही वर्ड लिखा था, गॉड। और इस तरह से in this way, the postmaster sent the letter back to Lanco. It means that postmaster did not clear that it was postmaster who was helping Lanco. Postmaster wanted to keep Lanco's faith in God. That's why he collected money for Lanco. The following Sunday, Lanco came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lanco showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. जैसे ही लैंको लिफाफे से पैसे निकालकर गिना, उस जितना वो मांगा था लैंको उतना पैसा नहीं था। पैसा गिनने के साथ ही लैंको गुस्सा गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lanco what he had requested। लैंको को लगने लगा था कि गॉड इस प्रकार की गलती नहीं कर सकते थे। लैंको को पता था कि गॉड से गलती होती नहीं है, और न तो गॉड उसके इस अनुरोध को, इस दुर्दीन समय में उसके अनुरोध को गॉड नकार भी नहीं सकते थे। That's why लैंको को लगा कि गॉड ने तो मुझे पूरा पैसा भेजा, बट पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉयज ने कहीं न कहीं चोरी कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या है। Immediately, Lanco went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. अब लैंको दोबारा पोस्टमास्टर के पास गया, मैंने खिड़की के पास जाकर के पेपर और इंक लिया, पब्लिक टेबल पर बैठ गया और अपनी भावें सिकोड़ कर फिर से लिखना शुरू कर दिया। Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. लिखने के बाद उसने फिर से
उस लेटर को उसी मेल बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही उसने डाला, पोस्ट मास्टर को फिर से पत्र मिला और पोस्ट मास्टर ने इस बार दोबारा उसके पत्र को खोल के पढ़ा। अभी पत्र में लिखा हुआ था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रिस्ट मी। इस बार लिखा था, हे ईश्वर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था मेरे पास मात्र 70 पैसोज ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। इस बार उसने कहा कि इस बार मुझे आप डायरेक्ट पैसा भेजिए, पोस्ट मेल के माध्यम से नहीं भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये सब ठग हैं, धोखेबाज हैं, ये सब पैसे रख लेते हैं। दैट्स वाई आप मुझे सीधा पैसा भेजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी हैज बीन फिनिश्ड। एज यू नो दैट इफ यू हैव फेथ इन गॉड, God will not let you go hungry. God will not let you fall in danger. That's why we must have a firm faith in God, just like Lanko. As Lanko believed in God and God made him help, in the same way we should have also a faith in God. And that's all. जाते मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, stay in home, maintain social distancing, keep safe.